ناول باغی رائٹر تمیم قسط نمبر 30۔ نسیمہ اپنے گناہوں کی سزا جیل میں قید کاٹ رہی تھی۔ اب ماوی کا مبشر حسن اور اس کی فیملی کے سوا اور کوئی بھی نہ تھا۔ مبشر حسن نے حذیفہ کو بلوایا تھا کیونکہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ماوی کی شادی حذیفہ سے کر دی جائے، کیونکہ اب ان کے سوا اس کے ساتھ ہی کون؟ وہ ایک اچھی پیاری اور صاف دل کی لڑکی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی ماں کی اصلیت ان سے چھپا لیتی، لیکن اس نے سچ کا ساتھ دیا تھا اور ان سب کو سچ سچ بتا دیا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ماوی ان کے بیٹے کی دلہن بن کر ہمیشہ اسی گھر میں ہی ان کے ساتھ رہے۔ علی رضا کے دھوکے دینے کے بعد ماوی بالکل بدل گئی تھی۔ مبشر حسن نے اس سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہ حذیفہ سے شادی کرنا چاہے گی، جس پر اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی، کیونکہ علی رضا کے بعد وہ حذیفہ مبشر کو ہی پسند کرتی تھی۔ جب حذیفہ گھر آیا اور اس نے اس کے ماں باپ نے یہ خواہش رکھی تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ سب جان چکا تھا کہ گل لالہ اصل میں مستقیم برہان کی منگیتر ہے اور وہ اسے جلد یا بدیر پاشا کی کیسے چھڑا لے گا اور پھر اسے شادی کر لے گا۔ اب اس کا گل لالہ کے لیے انتظار کرنا بے معنی تھا، اس لیے ماوی ہی اس کے لیے اچھی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی اصلیت ماننے کا سوچ لیا، کیونکہ ماوی کا اس پر یہ بھی احسان تھا کہ اس نے اسے یہ اصلیت بتائی تھی کہ گل لالہ اصل میں بے قصور تھی، ورنہ تو وہ ساری زندگی اس بیچاری پر شک کرتا رہتا تھا اور اسے قاتل سمجھتا۔ حذیفہ نے جب اپنی رضامندی ظاہر کی تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے جٹ سے شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی، مبادا کہیں حذیفہ کا موڈ نہ بدل جائے۔ حورین جو ہی گھر میں داخل ہوئی، اسے دیکھتے ہی ساجدہ بانو لپک کر اس کی طرف آئی اور پریشانی سے بولی، کہاں رہ گئے تھے تم لوگ؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ امی، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یا اللہ خیر، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور طلحہ کیسا ہے؟ امی ہم دونوں ٹھیک ہیں، اور وہ حادثہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حورین نے پوری تفصیل کے ساتھ ساجدہ بانو کو سب کچھ بتا دیا۔ ہائے بیچارہ، نہ جانے کس کا بچہ ہوگا، کس کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ یہ معاشرے کے لوگ بہت ظالم اور بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں کسی انسان کی زندگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، بس ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہیں، اگلا بندہ بے شک مر کیوں نہ جائے، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں اس کی۔ خیر یہ بتاؤ، اب تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی ابھی تک نہیں پہنچی تھی نا، اس لیے۔ بہت اچھا کیا طلحہ نے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، سب کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ ہم دونوں کی مدد نہ کرتا تو آج ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی ہوتی۔ اللہ میرے بچے کو ہمیشہ خوش رکھے۔ روحان کے بعد مجھے تم دونوں بہت زیادہ عزیز ہو، بالکل اپنے بچے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ خوش رکھے اور اسے مزید ترقیاں عطا کرے۔ ساجدہ بانو طلحہ کو دل سے دعائیں دینے لگی۔ حورین مسکرا دی۔ اچھا چلو اب ہاتھ منہ دھو لو، میں جب تک کھانا لگاتی ہوں، جب طلحہ آ جائے گا تو اس سے بچے کی حالت کا پوچھ لوں گی، پھر ہم دونوں بھی اسے دیکھنے جائیں گی، کیونکہ ایک مسلمان کی عیادت کرنا ہم پر فرض ہے۔ تم چلو گی نا میرے ساتھ ہاسپٹل اس بچے کو دیکھنے؟ جی امی ضرور، حورین نے مسکرا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ حورین ساجدہ بانو کے ساتھ چل دی۔ شجاع انصاری، اس کی اہلیہ اور لکی فردین کے لیے بہت پریشان تھے، اس کی حالت خطرے میں تھی اور وہ سب اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ شجاع انصاری کو دولہے شہوار کے بارے میں پوری اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دولہے شہوار ان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ اہم یہ تھا کہ ان کے بیٹے کی جان بچ جائے، جس کے لیے وہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ لکی بھی اپنے دوست کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، وہ اپنے دوست کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نوین بھی ہاسپٹل میں ہی تھی۔ طلحہ بھی فردین کے لیے بہت پریشان تھا، وہ بار بار کال کر کے نوین اور ڈاکٹر فیروز سے وقتاً فوقتاً فردین انصاری کی کنڈیشن کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے اور بالآخر اللہ نے ان کی دعائیں سن لی۔ فردین کی حالت اب خطرے سے تو باہر تھی، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ شجاع انصاری، اس کی اہلیہ اور لکی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فردین کی جان بچ گئی۔ ڈاکٹر فیروز نے شجاع انصاری سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اگر طلحہ اجاز انہیں بروقت ہاسپٹل نہ لاتا تو شاید اب تک ان کا بیٹا مر چکا ہوتا۔ آپ لوگوں کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ وہ سب طلحہ اجاز کے شکر گزار اور احسان مند تھے۔ فردین کو ہوش آ چکا تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آس پاس اپنے دوست اور ماں باپ کو خود کے لیے پریشان اور روتا ہوا پایا تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، ڈیڈ وہ لڑکا کہاں ہے جو مجھے ہاسپٹل لے آیا تھا؟ وہ تو پولیس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ پولیس کے ساتھ؟ لیکن کیوں؟ اسے پولیس کیوں لے گئی؟ وہ میرا محسن تھا، نہ کہ مجرم۔ اس نے میری جان بچائی تھی۔
نہ کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ غصہ ہی ہو گیا تھا یہ سب سن کر کہ پولیس اسے تفتیش کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ آپ اسے فوراً سے یہاں لے آئے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا، شکریہ تو ہم بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اس کا۔ اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے تمہاری جان بچا کر۔ فردین کچھ نارمل ہوا تو وہ اب لکی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ طلحہ کو نبیل نے کال کر کے بتا دیا کہ فردین کو ہوش آ گیا ہے۔ طلحہ نے اس کے لیے ایک خوبصورت سا پھولوں کا بکے لیا اور ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی اسے نبیل مل گئی تھی۔ السلام علیکم طلحہ بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ نوین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے نوین سے فردین کے روم کا پتہ مانگا۔ انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ روم نمبر 40 میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ طلحہ آگے بڑھ گیا۔ روم کے باہر ہوئی اسے فردین کے ماں باپ مل گئے۔ السلام علیکم، طلحہ نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواب ان دونوں نے ایک ساتھ دیا تھا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ طلحہ نے اجازت طلب کی۔ شجاع انصاری اسے فوراً سے پہچان چکے تھے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دینا، ہم تمہیں سمجھ نہیں پائے۔ تم نے ہمارے بیٹے کی جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ ارے نہیں انکل، پلیز ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، یہ تو میرا فرض تھا۔ شجاع انصاری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ تم یقیناً کسی اچھے اور نیک ماں باپ کی اولاد کی جس کی پرورش کی گئی ہے، ورنہ تو آج کل کے زمانے میں لوگ اپنا فرض ہی بھول چکے ہیں۔ تمہارے علاوہ وہاں اور کتنے ہی لوگ موجود تھے لیکن سب تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا میرے بیٹے کی جان بچانے کے لیے۔ یقیناً تم ایک بہترین اور اچھے انسان ہو، میں تمہیں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ تمہیں اس نیکی کا صلہ میرا رب بہت اچھے انداز میں دے گا۔ انشاءاللہ۔ طلحہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ شکریہ انکل، آپ کی اس دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی میرے لیے۔ کیا اب میں اندر جا سکتا ہوں؟ اس نے دوبارہ سے اجازت طلب کی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں بیٹا، تم جا سکتے ہو۔ شکریہ انکل۔ طلحہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی فردین بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کیسے ہو ہیرو؟ طلحہ اس کے پاس آتا اس کے سرہانے پھولوں کا بکے رکھتے ہوئے بولا۔ اسے دیکھتے ہی فردین فوراً سے پہچان گیا تھا۔ آپ؟ وہ فوراً سے اٹھنے لگا تو طلحہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس سے منع کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، لیٹے رہو۔ طلحہ اسے دوبارہ سے لٹاتے ہوئے اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، جس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب تم بھی شروع ہو گئے؟ میں ابھی باہر سے بھی یہی کچھ سن کر آ رہا ہوں۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ میرا فرض تھا، تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو۔ اب اگر آئندہ مجھے ایسا کچھ مت کرنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جی ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ طلحہ اجاز، اور تم مجھے طلحہ بھائی کہہ سکتے ہو۔ جی طلحہ بھائی۔ طلحہ اس کے منہ سے بھائی سن کر مسکرا دیا۔ طلحہ اس کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اتنی اپنائیت کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ وہ تو پہلی ہی بار اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد طلحہ اجازت لے کر وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساجدہ بانو اس کی بیچارہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ گھر آ کر اس نے ساجدہ بانو کو مطمئن کیا اور اس لڑکے کی خیریت سے بھی آگاہ کیا، جس پر ساجدہ بانو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، میں کل ہی حرین کے ساتھ اس کی عیادت کرنے ہاسپٹل جاؤں گی۔ جی آنٹی ضرور۔ اس ہفتے کو ارحام شہاب اور محسنہ کا نکاح تھا۔ رومانہ شہاب ایزا اس تنگ تری کمرے میں چلی آئی تھی جہاں پر اس نے اپنی سگی بیٹی کو قید کیا ہوا تھا۔ ایزا کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے پیچھے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ رومانہ شہاب کو دیکھتے ہی ایزا کی آنکھوں میں اس کے نفرت دھر آئی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ رومانہ شہاب اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی سگی بیٹی کو دیکھنے لگی جو اس سے نفرت کرتی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ ایزا نفرت سے بولی۔ ابھی زندہ ہوں، مری نہیں ہوں۔ رومانہ شہاب اس کا جواب سن کر مسکرائی۔ اور تمہارا زندہ رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ سن کر وہ تنزن بولی، ہاں ماما، اور میں بھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میں آپ کی حقیقت بھیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ تب تک میں زندہ رہوں جب تک کہ میں بھیا کو آپ کی اصلیت نہیں بتا دیتی۔ وہ بیچارے آپ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، آپ اسے بے پناہ پیار اور آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ آپ کے اندر کتنا بڑا شیطان چھپا بیٹھا ہے۔ ایزا، رومانہ شہاب داری تھی، لیکن ایزا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ ایزا تمیز سے بات کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ ماں؟ وہ تنزن ہنسی۔ سچ پوچھے تو مجھے اس بات کی سب سے زیادہ شرمندگی ہے کہ آپ جیسی عورت میری ماں ہے۔ مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے آپ سے کہ آپ جیسی عورت جو اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، جس نے اپنی سگی بیٹی تک کو بھی نہ بخشا تھا،
और उसे इस अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। नहीं मेरी जान, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। वो मेरा सगा बेटा नहीं है, वो किसी भी वक्त अपने सौतेले बेटे का असर दिखा सकता है। इसलिए मैं ये सब करके तुम्हारा और अपना मुस्तकबिल महफूज बना रही हूँ। मैंने कई जगह देखा है कि सुतेला खून सुतेला ही रहता है। क्या होगा जब वो सारी जायदाद पर कब्जा कर बैठे और फिर हमें इस घर और जायदाद से बेदखल कर दे? फिर हम क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी हम? मैंने दुनिया देख रखी है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ ताकि कल को हमें कोई परेशानी ना हो। और वैसे भी बेटा, तुम इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, वो सुतेला भाई है तुम्हारा। और तुम्हें तो अपनी माँ का साथ देना चाहिए, ना कि इस सुतेले भाई का। माँ की पूरी बात सुनने के बाद इज़ा नफरत से बोली, भैया बेशक मेरे सुतेले भाई हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी मोहब्बत और शफकत से ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो मेरे सगे नहीं बल्कि सुतेले भाई हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं मॉम, और वो आपसे लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि इन्होंने किसी को अपने धोखा नहीं दिया, किसी की पीठ पर छुरा नहीं घोंपा जिस तरह आपने घोंपा है। आप बहुत बुरी हैं, हद से ज़्यादा बुरी। और वो आपकी तरह रिश्तों को दौलत से नहीं परखते। आप बहुत बुरी औरत और बुरी माँ हैं। मैं आपको कभी भी इन सब के लिए माफ़ नहीं करूँगी। आपने मुझे हर्ट किया। मैं आपसे शदीद नफरत करती हूँ। सुना आपने, शदीद नफरत। ये कहते हुए इज़ा फूट फूट कर रो पड़ी। आप एक धोखेबाज औरत हैं। आप इस बेटे को धोखा किया और उसकी पीठ पर छुरा घोंपा, जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपनी जान निछावर करता है। वो आप पर आंख बंद करके यकीन करता है, लेकिन आपने क्या किया उनके साथ? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं भैया के साथ? ईज़ा, तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम भी इस तरह मुझ पर एतबार क्यों नहीं करती। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारी और तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। माँ, मैं अब आप पर कभी भी भरोसा नहीं करूँगी। आप भरोसा करने के काबिल ही नहीं हैं। ईज़ा, तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो जो मेरी बात नहीं समझ रही। माम देखना, आप एक दिन बहुत पछताएंगी। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन किस्मत रिश्ते होते हैं। जब आपसे ये प्यार करने वाले रिश्ते छूट जाएंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या चीज़ खोई है। तब आप अकेली रह जाएंगी। तुम एक नासमझ और ज़िद्दी लड़की हो। तुम्हारे दिमाग में भूसा बड़ा हुआ है। तुम अपने सुतेले भाई की मोहब्बत में अंधी हो गई हो। तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंध गई है। जब ये पट्टी तुम्हारी आंखों से उतर जाए तब ही मैं आऊंगी तुमसे दोबारा मिलने। ये कहकर रुमाना शहाब उठकर वहां से उठ गई। माम देखना, आप बहुत पछताएंगी। याद रखना मेरी बात। आप तब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तब आप खाली दामन हो चुकी होंगी। इज़ा चीख चीख कर कह रही थी, लेकिन रुमाना शहाब उसकी चीखों को नजरअंदाज करती वहां से चली गई। और पीछे अंधेरी कोठरी में कैद इज़ा बिलक बिलक कर रो पड़ी। भला कोई माँ ऐसी सफाक भी हो सकती है क्या? क्या कोई माँ अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा भी कर सकती है, जैसा कि रुमाना शहाब उसके साथ कर रही थी? मुस्तकीम बुरहान सोफे पर बैठा टांग पर टांग रखे अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाए उसे अपने थोड़ी के नीचे रखे बड़ी गहरी सोच में गुम था, क्योंकि आज उसकी गैंगस्टर की दुनिया के बहुत खतरनाक गैंगस्टर सुल्तान पाशा से मुलाकात तय थी और उसके आने में बस चंद मिनट ही बाकी थे। वो सोच रहा था कि उसे किस तरह से डील करना है। उसके दाएं बाएं उसके मसला आदमी खड़ी थे, तभी नवाज वहां चला आया। मोन बाई पाशा तशरीफ ला चुके हैं। हमने उन्हें बाहर ही रोक के खड़ा हुआ है। वो अपने साथ अपने मसला आदमियों को भी लाया है। मुस्तकीम ने नवाज को देखा और गोया हुआ, पाशा की अच्छे तरीके से तराशी लो और फिर इसे अंदर ले आओ। जी मुनबाई, नवाज जाने लगा तो मुस्तकीम ने कहा, और हाँ सुनो जी मुनबाई। नवाज पलटा, उसके आदमियों को बाहर ही खड़ा रखना, अंदर मत आने देना और इन पर कड़ी नजर रखना। पाशा कुछ भी कर सकता है। जी मुनबाई। नवाज अपनी गन संभालता बाहर निकल गया। नवाज ने मुनबाई का पैगाम पाशा तक पहुंचाया, जिसे सुनकर पाशा को बहुत नागवार गुजरा था। पाशा के साथ अंजी भी आई हुई थी, जो रोहान के हुक्म पर दूसरी साइड चली गई थी ताकि नवीन को अपनी चेकिंग करवा सके। पाशा को गुस्सा तो बड़ा आया था, लेकिन क्या करता अब आ ही गया था तो यहाँ से मुनबाई से मिले बगैर वापस पलटना बेवकूफ़ी ही था। उसने अब मुश्किल अपने गुस्से को दबाया और बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर वो अपनी चेकिंग करवाने लगा। गुल खान बड़ी सख्ती के साथ उसकी एक एक चीज़ की तलाशी ले रहा था। रोहान और नवाज भी वही मौजूद थे, जो अपने साथियों की मदद से उसके आदमियों की तलाशी ले रहे थे। गुल खान को उसके कोट का एक एक कोना यूं चेक कर रहा था कि जैसे कोई कहीं किसी जेब में बम छुपा कर न आया हो। ये सब देखकर पाशा जलकर बोला, कपड़े पार कर देख लो ना, फिर एक्सरे मशीन ले आओ। कहीं मैं अपने मुंह के अंदर फिर पेट के अंदर बम न छुपा कर आया हूँ। हद है वैसे। वो गुस्से से बोला, तुम गैंगस्टर की दुनिया के सुल्तान पाशा की इस तरह से कैसे तलाशी ले सकते हो?
गुल खान उसे देखते हुए बोला, हम वो भी कर लेता अगर जो हमें उसका इजाजत होता। ये मेरी बेइज्जती है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम लोगों के मोहन भाई से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। अब क्या तुम लोगों के हाथ दोस्तों के साथ ऐसा रवैया रखा जाता है? इस बार रोहान उसकी पेंट में अड़ से पिस्तौल को निकालते हुए उसे दिखाते हुए बोला, क्योंकि हमारा सबसे पहला रोल यही है कि अपने मोहन भाई की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, उसे भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि सियाने कहते हैं कि शाम को जितना भी दूध पिलाओ लेकिन फिर भी वो डस ही लेता है। इसलिए हम सबसे पहले अपने दोस्त को ही अकाब की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये दोस्त ही होते हैं जो दोस्त पर बनकर पीठ पर छुरा घूमते हैं। इसलिए दोस्त की खाल पहने दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो एक बिच्छू की तरह होता है जो अपनी फितरत से मजबूर बड़ा आकर डर से ही लेता है। रूहान मुस्कुराते हुए बोला, अब जबकि चेकिंग मुकम्मल हो गई है तो आप हमारे साथ अंदर तशरीफ ला सकते हैं, लेकिन अपने आदमियों के बगैर। हमारे साथी आपके आदमियों की यहाँ पर अच्छी तरह से खाता मदारत करेंगे और इन्हें अपनी कंपनी फ्रेम करेंगे ताकि ये लोग बोर ना हो सके। चले आप पाशा जी, रूहान ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोला। पाशा ने बड़े गौर से रूहान को देखा। उसने बड़ी अक्लमंदी की बातें की थी जिस पर वो बड़ा मुतासर हुआ था। पाशा ने सोचा था कि जिसके पास ऐसे अक्लमंद दोस्त और साथी हों उसे कोई भी दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। अब मैं समझा कि मोहन बाई की ताकत क्या है। वो कुछ सोचकर मुस्कुराया। पाशा अंजी के साथ दाखिल हुआ। सामने ही मुस्तकीम सोफे पर टांग रखे बैठा था और उसके आसपास उसके मसला आदमी खड़े थे। पाशा ने बड़े गौर से इस इमारत को देखा था, वो भी उसे सराहे बगैर न रह सका। पाशा मुस्तकीम के पास आया। वो जो उसे शान से आया था उसे समझ रहा था कि सुल्तान पाशा उससे मिलने आया है तो वो उठकर उसका शानदार इस्तकबाल करेगा, लेकिन ये तो उसकी सोच से बिल्कुल ही बरक्स था। मुस्तकीम बढ़ान सोफे की पूंछ से टेक लगाए टांग पर टांग रखे बड़े रौब के साथ बैठा था। मुस्तकीम बैठे बैठे ही उसे देखकर बोला, खुश आमदीद पाशा जी, आए बैठिए। वो सामने वाले सोफे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोला, इज्जत थी कि बेइज्जती? पाशा समझ ना सका। इसने मुनबाई को देखा जो अभी भी सोफे की पूंछ से टेक लगाए आराम से टांग पर टांग रखे बैठा हुआ था। इसने तो इस्तकबाल करना तो दूर की बात, उससे हाथ तक मिलाना जरूरी ना समझा था। क्या एटीट्यूड था मुनबाई का! पाशा को इस पर शदीद गुस्सा आया था। वो इससे रवैये की बेइज्जती कर रहा था। वो अपने दिल पर भारी पत्थर रखकर अपना कोट दुरुस्त करता हुआ वो भी मुस्तकीम के सामने टांग पर टांग रखे बैठ गया। मुस्तकीम ने अपनी उंगलियों से अपने साथियों को वहां से बाहर जाने का इशारा किया तो वो पलक झपकते ही उसका हुक्म पाते वहां से निकल गए। पाशा मोनबाई का ये रोब देखकर बड़ा मुतासिर हुआ। अब वो पूरी तरह से पाशा की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते थे आप मुझसे? पाशा गोया हुआ। मोनबाई, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। जो आप काम करते हैं मैं भी वही करता हूँ। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मुस्तकीम उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, बिल्कुल गलत। मैं वो काम नहीं करता जो तुम करते हो। मैं गलत काम नहीं करता और मेरा मुआवजा ना खुद से ना ही करो तो बेहतर है। हाँ हाँ, वही सही कहा तुमने मुनबाई। मैं ये कह रहा था कि हम जो भी काम करते हैं वो अपने मुफाद के लिए ही करते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। इतनी इज्जत है आपकी, इतनी दौलत है आपके पास। मुस्तकीम ने उसकी बात फिर से काटते हुए बोला, ये सब मेरा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का दिया हुआ है। हाँ हाँ, वही लोग आपसे डरते हैं। किसने कहा है आपसे और किसने अफवाह फैलाई है? मुस्तकीम फिर उसकी बात काटते हुए सपाट लहजे में बोला तो पाशा हड़बड़ा कर बोला, मैंने बस सुना था। पाशा जी, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल मूनबाई। हाँ तो बताओ किस लिए आए थे? मूनबाई, मैंने सुना है कि मुस्तकीम बुरहान नामी एक नौजवान आपके साथ काम करने लगा है। पाशा बिलाखर असल बात अपनी जुबान पर ले आया। पाशा अपना कोट टी करते अपना पहलू बदलते हुए बोला। ये सुनकर मुस्तकीम के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ बिल्कुल, ये तो सही सुना है तुमने, लेकिन तुम्हें इसकी खबर कैसे हुई? क्या तुम मेरी जासूसी करवा रहे थे? लगता तो ऐसा ही है कि तुम मुझ पर और मेरे आदमियों पर नजर रखे हुए थे और हमारी एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे थे। इसलिए तो तुम्हें इतनी जानकारी हासिल हुई है हमारे बारे में। मुस्तकीम की ऐसी साफगोई पर पाशा हकलाया। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो तो बस दोस्तों की खबर रखने के लिए ऐसा किया था और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा कब से दोस्त हो गया पाशा? मुस्तकीम ने सपाट लहजे में ये कहा तो पाशा एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया था। उसने बेचैनी से अपना पहलू बदला। वो बस अभी भी हम दोस्त हुए हैं ना? मुस्तकीम उसे बड़े गौर से देख रहा था जिस पर पाशा गड़बड़ा गया था। अब ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं, बताओ क्या चाहते थे तुम?
दरअसल मून भाई, वो लड़का मेरा नंबर एक दुश्मन है। उसने मुझे बड़ा सताया और तरपाया है। मैंने उसे बार बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो लड़का हर बार मेरी पकड़ से बच के निकल भागा। इसलिए जब मैंने सुना कि वो लड़का आपसे हाथ मिला चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हाथ मिला लूँ और फिर आप मुझे वो लड़का दे दें। मैं उसे अपने पुराने हिसाब चलता करना चाहता हूँ। किस खुशी में दे दूँ तुम्हें वो लड़का? हाँ, क्या? पाशा का मुंह भूल गया था मून भाई का ये जवाब सुनकर। अगर मैं तुम्हें वो लड़का दे भी दूं तो फिर बदले में मुझे क्या मिलेगा? पाशा इसका सवाल सुनकर मुस्कुराया। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। वो क्या? मैं इस लड़के के बदले तुम्हें एक लड़की दूंगा। वो बहुत ही हसीन जमील है। यकीनन वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इतनी खूबसूरत है वो। पाशा ने उसे गुलारा के बारे में सब कुछ बता दिया। ओ, तो ऐसी बात है। जी मून भाई, चलो के मान लिया कि वो खूबसूरत है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो खूबसूरत है? ये तो तुम्हारी आंख का कमाल था ना। मैंने तो उसे देखा नहीं है। क्या पता कि वो मुझे पसंद ना आए। अरे नहीं, वो तुम्हें भी जरूर पसंद आएगी। अगर तुम उसे देखना चाहते हो अपनी आंखों से, तो तुम कभी भी किसी भी वक्त मेरे गरीब खाने में तशरीफ ला सकते हो उसे देखने के लिए। मुस्तकीम यही तो चाहता था। ठीक है, फिर सौदा डन हो गया। अगर वो लड़की मुझे पसंद आ गई तो फिर मैं सौदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। पाशा खुश हो गया। ठीक है मून भाई, फिर ये सौदा पक्का हो गया। मुस्तकीम ने सर असबात में हिलाया। मुस्तकीम उठ खड़ा हुआ तो पाशा भी उठ गया। पाशा ने उसके साथ हाथ मिलाते हुए बोला, ठीक है फिर मून भाई, जब आपका दिल चाहे तो मुझे खबर कर दीजिएगा। मुस्तकीम उसे गौर से देखता उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कीरे हुए स्पॉट लहजे में बोला, अगर ये तुम्हारी चाल हुई कि तुम मुझे वहां बुलाकर अपने जाल में फंसा लोगे, तो ऐसा सोचना भी मत पाशा। मैं ना तो मुस्तकीम बुरहान हूँ और ना ही लाला, जो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ आ जाएगा। अगर मुझे कैद करने या फिर मारने की कोशिश की तो जान लो कि मून भाई सबसे पहले दुश्मन को मारता है और फिर खुद मरता है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये सोच अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं जब भी दुश्मन की खुपा में जाता हूँ तो सबसे पहले अपनी हिफाजत के लिए उसके खिलाफ बाहर एक जाल बिछा कर आता हूँ, ताकि इस तरह मैं महफूज रहूँ। पाशा उसकी इतनी गहराई की सोच सुनकर दंग रह गया था। वो सच में बहुत ही अक्लमंद था। मोन बाई उसका हाथ छोड़कर उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि किसी को अपने जाल में फंसाने के बजाय कहीं किसी और के जाल में ना फंस जाओ। इसका शिकार करते हुए हमेशा के लिए केयरफुल रहा करो, और ऐसा ना हो कि शक्कर करने की बजाय तुम किसी और का शिकार बन जाओ। मुस्तकीम दिलकशी से मुस्कुराया, इसलिए केयरफुल रहा करो कि ये मेरी इस्लाह है तुम्हें। वो इसका कंधा जोर से थपथपाकर मुस्कुरा कर बोला। तो पाशा बिना चाहते हुए मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ मोन भाई। हाँ जरूर, वो रहा दरवाजा, तुम अब जा सकते हो। मुस्तकीम ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर पाशा का मुंह हैरत से खुल गया। वो हंसते हुए अजरा मजाक करते हुए बोला, मोन भाई, आपने तो मुझे चाय की सुलाह ही नहीं लगाई। मुस्तकीम भी जवाब में हंसते हुए बोला, हाँ चाय जरूर पड़ता, लेकिन क्या करूँ, ये आपकी बदकिस्मती है कि आज सुबह ही चीनी खत्म हो गई। पाशा हंसकर बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। उसने अपना हथेली मुस्तकीम के सामने की तो जवाब मुस्तकीम भी करते हुए उसकी हथेली पर हाथ ताली मारते हुए बोला, आपस की बात है, मैं भी मजाक कर रहा था। हाँ क्या? उसका तो मुंह ही खुल गया था। सच में ये आदमी पाशा जैसे आदमी की समझ से बिल्कुल ही बाहर था। वो उसे समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है या फिर इज्जत। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा मोन भाई, आपका जब भी दिल चाहे मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाइएगा, मैं इंतजार करूंगा। अब मैं चलता हूँ। मुस्तकीम से हाँ में हाँ हिलाते हुए कहा, जरूर जाइए। पाशा चल दिया। मोहन भाई, जब भी आना हो तो मेरी सफ़ीर के ज़रिए मुझे बता देना। मैं तैयार रहूँगा आपके इस्तकबाल के लिए। वो अपनी धुन में मगन मोहन भाई से बातें करता दरवाजे तक पहुँच गया था, लेकिन जब उसने अपना सर उठाया तो वो अकेला था। उसने जो ही पलट कर पीछे देखा तो उसका मुंह खुल गया था, क्योंकि वो कब से ऐसे ही भौंके जा रहा था। मोहन भाई तो वहीं अपनी जगह पर खड़ा था। पाशा के देखने पर उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा था। उससे इस लड़के पर शदीद गुस्सा आया था। वो तो समझा था कि वो उसे गेट तक छोड़ने आएगा, लेकिन ये तो दरवाजे तक भी उसके पीछे ना आया था। क्या एटीट्यूड था इस बंदे का! यानी कि उसके सामने पाशा की कोई वैल्यू ही ना थी। पाशा ने भी जवाबन उसे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा और बाहर निकल गया। पाशा के जाते ही मुस्तकीम हंस दिया। बल आखिर लूमर जाल में फंस ही गया। पाशा के जाते ही वो सब जल्दी से अंदर आ गए और मुस्तकीम से पूछने लगे कि आखिर क्या बात हुई पाशा के साथ। और मुस्तकीम ने इन सबको पूरी बात बता दी कि पाशा ने उसके साथ कौन सा सौदा किया है। हुज़ैफा ने परेशानी से कहा, मून भाई, अगर पाशा ने आपको धोखा देने की कोशिश की तो?
मुस्तकीम उसके आगे सुनकर मुस्कुराते हुए बोला। फिर वो मुस्तकीम बुरहान को नहीं जानता है। अगर उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर वो मेरे गजब से बच नहीं पाएगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। मैंने भी उसके लिए एक जाल बिछाया है। अगर उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर वो मेरे जाल से भी नहीं बच पाएगा। सब एक दूसरे को नासमझी से देखने लगे। उन्हें मुस्तकीम की कोई भी बात समझ नहीं आई थी। तलहा को जब मोहसिना के निकाह का पता चला तो वो फाकरा से मिलने उनके घर चला आया। दरवाज़ा मोहसिना ने ही खोला था। तलहा को देखकर वो खुश हो गई थी। अरे तलहा भाई, अब यहाँ? हाँ, कैसी हो? वो उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तलहा भाई, आइए अंदर आइए। वो उसे लिए अंदर चली आई। उसने तलहा को बिठाया और जाकर फाकरा को बुला कर ले आई। फाकरा को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ था। अरे बैठे रहो बेटा। वो उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बोली। कैसे हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जब सुना कि मोहसिना का रिश्ता तय हो गया है तो बस चला आया। आप बताइए लड़का कैसा है? अच्छा तो है ना मेरी मोहसिना के लिए? तलहा ने मोहब्बत से पास बैठी मोहसिना के सर पर हाथ रखते हुए पूछा, जिस पर मोहसिना मुस्कुरा दी। और तलहा की मोहसिना के लिए ये फिक्र देखकर फाकरा को बहुत खुशी महसूस हुई थी। हाँ बेटा, माशाल्लाह से लड़का बहुत ही अच्छा है और घर बार भी बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तलहा ये सुनकर खुश हो गया था कि लड़के वाले अच्छे हैं। अब वो मोहसिना को देखकर शरारत से कहने लगा, हाँ भाई, अब तो तुम अपने पिया घर सुधार जाओगी। फिर कौन दीवार चढ़ कर जामुन चोरी करने आया करेगा? यार मैं तो तुम्हें बहुत मिस करूंगा। ये सुनते ही मोहसिना फूट फूट कर रो पड़ी। अरे छोटी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तलहा उसको यूं रोते हुए देखकर बोला तो मोहसिना उसके कंधे से सर टिकाते हुए बोली, भाई मुझे रोना आ रहा है। अरे पागल लड़की, तुम रो क्यों रही हो? ये तो हर लड़की के साथ होता है। एक ना एक दिन तो उसे जाना ही होता है अपने असल घर। चलो अब रोना बंद करो और अपने आंसू साफ करो। तलहा उसके आंसू चुनते हुए बोला, अब मुस्कुराओ। तलहा के कहने पर वो मुस्कुरा दी। इन्हें यूं देखकर फाखरा भी मुस्कुरा दी। वो तलहा के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। मौका पाकर मोहसिना ने तलहा से पूछ ही लिया, तलहा भाई रूहान कैसा है? इसे क्या होना है भाई, बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में है। इस दिन के बाद तो उसने मुझसे दोबारा राब्ता तक नहीं किया। कहा भी था कि मुझसे कांटेक्ट में रहना, लेकिन नहीं। मजाल है जो वो मेरी किसी भी बात को सीरियस ले ले। हाँ वो ऐसा ही है तलहा भाई, उसे किसी की भी फिक्र की कोई परवाह नहीं है। मोहसिना ने जैसे रूहान की शिकायत की थी। निकाह कब है तुम्हारा? जी तलहा भाई इस हफ्ते को है, वो आस्तगी से बोली। जिस पर तलहा मुस्कुराया। आप आएंगे ना तलहा भाई? मोहसिना ने उससे पूछा था। हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, और साजदा आंटी, हुरैन, फरा और नवीन को भी साथ लाइएगा। हाँ ज़रूर, उनको भी साथ ले आऊँगा। अलबत्ता फरा नहीं आ सकेगी, वो गाँव की हुई है। जी भाई ठीक है, मैं मुंतज़िर रहूँगी। अच्छा मैं चलता हूँ। तलहा उठ खड़ा हुआ। अरे तलहा भाई, चाय तो पी कर जाएं, अम्मी चाय बनाने गई हुई हैं। नहीं गुड़िया, मुझे अभी किसी ज़रूरी काम से जाना है, फिर कभी सही। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराया। तलहा वहाँ से रवाना हुआ। मोहसिना उसे पीछे दरवाजे तक गई थी। तलहा वहाँ से सीधा साजदा बानो से मिलने चला गया था। जारी है।